سے قرضے لے لیے, ہمیں قرضے دینے پڑے, تکلیف میں ہمیں قرضے دینے پڑے تو مہنگائی ہے, ہمیں قرضے دینے پڑے تو یہ حال ہمارا معیشت کی تباہی ہے. لیکن میں آپ کے کیمراز کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10,400 بلین 5 سال میں جو منصوبے میں نے آپ کو بتائے, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے قرضہ لیا اور صرف 2.5 سال میں 11,500 بلین کا قرضہ ان نالائکوں اور چوروں نے لیا. 11,500 بلین کا. اور اگر صرف آپ کی سمجھ کے لیے کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے 11,500, وہ اس لیے قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آ رہی کیونکہ چوروں نے, نالائکوں نے 11,500 کا قرضہ لے لیا اور جھوٹ بولتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے قرضے دینے کے لیے ہم نے 11,500 قرضہ لیا. 11,500 قرضہ لے کے ایک اینٹ نہیں اسپتال میں کوئی نیا کمرہ, نہ اسکول میں نیا کوئی کلاس روم, نہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک اینٹ, نہ موٹر وے کی ایک اینٹ, نہ بجلی کا 1 میگا واٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 سال 11,500 بلین کا جو قرضہ ہے, 4 سال اگر موجودہ حکومت پاکستان کے عوام ہر شخص کو مفت بجلی دے, مفت گیس دے, مفت روٹی دے, مفت آٹا دے, مفت چینی دے, کیا دے, مفت بجلی دے, مفت گیس دے ہر شہری کو, مفت دوائی دے, مفت بجلی دے, مفت آٹا اور چینی دیا جائے, 4 سال تو یہ رقم بنتی ہے 11,500 بلین جو ان نالائکوں نے 2.5 سال میں قرضہ لے دیا, جو ملک کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنی تیزی سے قرضہ نہیں لیا. اور یہ قرضہ کہاں جا رہا ہے, اس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دے رہی ہے. یہ جو دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے, کمیشن خور یہ کاغذ لہراتے ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاغذ کا سائز جو ہے وہ اتنا ہو گیا پچھلی پریس کانفرنس میں, لیکن یہ اتنے جھوٹے ہیں, یہ اتنے کمیشن خور نالائق چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ آپ کاغذ نہیں لہراتے. اب سرکاری خرچے کے اوپر بیٹھ کر وہ کمیشن خور شہزاد اکبر صاحب جو انشاءاللہ عمران صاحب کی سیاسی قبر میں اگر آپ جائیں گے, یہ جو 20 پارٹی ہے نا جنہوں نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ڈائیورٹ کرتے ہیں, اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں. جس دن الزامات لگاتے ہیں, جس دن پریس کانفرنس کرتے کوئی نہ کوئی تماشا کرتے ہیں, اس دن بجلی کی قیمت مہنگی کرتے ہیں, اسی دن پیٹرول کی قیمت مہنگی کرتے ہیں, اسی دن گیس کی قیمت مہنگی کرتے ہیں. اتنی بڑی واردات ڈالتے ہیں اس دن جس دن عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. تو مختصراً پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل جانا چاہیے اور چل گیا ہے, کیونکہ جب عوام کے گھر گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے, تو یہ جو پاکستان کا قومی خزانہ ہے اس پہ قبضہ گروپ اس وقت قابض ہے, ملک کو قبضے میں لیا ہوا ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ نالائکوں, نااہلوں اور چور ٹولے کو ان کے تمام الائز پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عوام نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اس لیے اوپن بیلٹ سینٹ میں ہونا چاہیے. جس وقت چیئرمین سینٹ کا الیکشن چوری ہوا, ڈاکہ ڈالا گیا, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے جب کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو یہ شخص خدا کے لہجے میں بول رہا تھا. یہ شخص کہتا تھا, اتنا تکبر تھا اس وقت جب ہمارا الیکشن چوری ہوا چیئرمین سینٹ کا, اور آج کہتے ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. 2.5 سال کے بعد یہ صرف میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے. 2.5 سال کے بعد آج جب اپنے ممبران چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب اپنے الائز چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب تنہا رہ گئے ہیں, پاکستان کی عوام نے جب ان کے احتساب کی کارروائی شروع کر دی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں. یہ آٹا چینی چور مافیا یہ ملک کے اوپر قابض ہے, اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے اور دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور براڈ
मुल्क ने इनकी तमाम चोरी पकड़ी है, करप्शन पकड़ी है। पिछले 5 साल वजीर आजम क्या कहता है महंगाई तो हुई नहीं, महंगाई तो नहीं है मुल्क के अंदर इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त ATM ये कब्जा ग्रुप चलाते हैं, जिस वक्त बावर्ची खाने का जो खर्चा है वो ATM चलाते हो, जिस वक्त मांगे तांगे की गाड़ी के ऊपर बैठते हो, जिस वक्त मुल्क के ऊपर दाएं और बाएं आटा चीनी चोर माफियाज को बिठाकर मुल्क को और माफियाज की सहूलतकारी की जाती है। तो उस वक्त कहते हैं महंगाई नहीं है, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। तो मैंने कल भी कहा था कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर चुकी है। ये कब्जा ग्रुप आटा चीनी चोर माफिया जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिस तरह इनको पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ का मीडिया से पता चलता है, 31 जनवरी गुजर चुकी है, इनको अपने जाने का भी अब मीडिया से ही पता चलेगा। इनको ये पता चलेगा कि इनकी जो हुकूमत है वो जा चुकी है, जो अपने आप को वजीर आजम समझता है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो वोट चोरी करके आया है, ये वो कब्जा ग्रुप है जो मुल्क के ऊपर इस वक्त काबिज है। इसलिए इनके दिन गिने जा चुके हैं। 4 तारीख को इंशाअल्लाह PDM का जो इजलास है उसमें पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी सुनाई देगी। आज शहबाज शरीफ साहब को असासाजात केस में पेश किया गया। अदालत के रूबरू उन्होंने आज फिर पूछा कि नैब की प्रोसिक्यूशन मुझे ये बताए कि मेरे खिलाफ करप्शन का कहाँ पे इल्जाम है और मेरे खिलाफ कौन से सरकारी मंसूबे, कौन से सरकारी टेंडर, कौन से सरकारी प्रोजेक्ट में किकबैक या कमीशन का इल्जाम है। जो तोता मैना की कहानी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बनाई गई है, उसमें 2 साल गुजर जाने के बावजूद एक धेले का सबूत प्रोसिक्यूशन सफाई मिसल पे और अदालत के रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं ला सकी। दूसरी तरफ इस मुल्क में जो कब्जा माफिया राइज है, उसमें मैंने कुछ सवालात किए थे मिर्जा शहजाद अकबर साहब से कि ये मुराद अकबर नामी आदमी जो आपका सगा छोटा भाई है, क्या आप बता सकते हैं कि जो पिंडी के मौजे में उसने कब्जा करने की कोशिश की और सरकारी गाड़ियों पर वो कब्जा लेने गया, उस कब्जे की इंक्वायरी का क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, ADC रेवेन्यू रावलपिंडी, ASP उस पर्टिकुलर सब डिवीजन का, उनके तबादले क्यों किए गए जब उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की मुराद अकबर के खिलाफ? रोज आप कागज लहराते हैं, इल्जामात की बुछार करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, अदालतों में कुछ साबित नहीं होता और ना होना है। हम जो सवाल कर रहे हैं इनका जवाब देने से आप कासिर क्यों हैं? आपकी जुबान को ताला क्यों लग जाता है जब आपसे आपके भाई के कब्जे का पूछा जाता है? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की ऑफेंस है। नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स सरकारी ओहदे पर होते हुए अपनी सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को या अपने खानदान को वो फायदा देने की कोशिश करे, ये सीधा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी लगता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद आगे आ जाइए, एक साहब है जो टीवी पे इतराफ कर चुके हैं कि मैंने पुलिस का जो CCPO है लाहौर का वो इसलिए लगाया था कि अपने बहनोई के प्लॉट पे उसका कब्जा जमा सकूं। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी आवाम को बताइए कि हाई कोर्ट आपके बहनोई के प्लॉट के हवाले से कह चुकी है कि वो आपने नाजायज कब्जा कराया था, वो आपके बहनोई का प्लॉट था ही नहीं। नंबर 3, लाहौर के एक सूबाई वजीर हैं कि वो आपने नाजायज कब्जा कराया था, वो आपके बहनोई का प्लॉट था ही नहीं। नंबर 3, लाहौर के एक सूबाई वजीर हैं कि वो आपने नाजायज कब्जा कराया था, वो आपके उनके कब्जे के मामलात की वजह से और आए रोज कब्जे पे झगड़े के मामलात की वजह से आपने उनको वजारत से हटाया। वही काम किया जो आमिर त्यानी के साथ किया था कि दवाइयां चोरी कर लो, तुम्हें ओहदे से हटा देते हैं, तुम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन जाओ। उन मासूम सूबाई वजीर से जवाब कौन लेगा? हमें कब्जा माफिया करते हैं। और जितने केसेस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाए गए हैं, खोखर बरादरान का ऑर्डर ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने उसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हाई हैंडेडनेस, यानी इंतजामिया ने उस पर ज्यादती की। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का स्टे था वो स्टे रहेगा। ये किराए के तर्जमान रोज टैं करते हैं, कागजात भी पढ़ लिया करें। अदालत में
एडवोकेट जनरल दफ्तर का एक एडवोकेट जनरल पेश हुआ, उसको अपने खोखर बरादरान के केस का ब्रीफ क्यों नहीं किया? उसने अदालत में वो बातें क्यों नहीं की जो आप कैमरों के सामने करते हैं? शर्म आनी चाहिए। इसी तरह जो अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, अदालत में आप दिफा करते नहीं क्योंकि आपको पता है आपके पास सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है। सियालकोट की कार्रवाई की, जहां पे कार्रवाई की वो जमीन भी उस शख्स की, वो पार्क भी उस शख्स की जाती मलकियत, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो दफ्तर भी उस शख्स का अपना, और उसमें नक्शे के अंदर छोटी मोटी इरेगुलरिटी पॉइंट आउट करके उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए गिरा दिया। वो दिन दूर नहीं है जब बुलडोजर बनी गाला का रुख करेंगे और उस 300 कनाल के महल में जहां आप रहते हैं, जिसका खर्चा पेयर्स के पैसे से जाता है, जो चीनी चोरी करता है आपके खर्चे उठाता है और उठाता रहा है, जो आटा चोरी करता है आपके खर्चे उठाता है, जो अदवियात चोरी करता है वो आपके खर्चे उठाता है। गोया आपने ये जितने बड़े स्कैंडल आए हैं, आटा, चीनी, अदवियात, LNG, गैस, बिजली, इनसे पैसे आपके लोगों ने कमा के आप पे ही लगाए हैं। और ये वो लोग हैं जो धरने फंड किया करते थे, जिनके जहाजों में आप सैर किया करते थे, अब आप उनको पैसे वापस कर रहे हैं, और अब वो आपको पैसे वापस कर रहे हैं और वो आपके ओहदे का फायदा उठाते हुए ये कमाई करके आपको वापस कमा के दे रहे हैं। और आपके बावर्ची खाने का खर्चा तो खैर, वो तो आप क्रिकेट में भी थे तो आपने कभी बावर्ची खाने का खर्चा खुद नहीं उठाया था, वो कोई ना कोई आपका फाइनेंसर आपके साथ होता था, आपने कभी बटा नहीं रखा जिंदगी के अंदर। तो ये वो शख्स है जो जिसकी वजह से आपकी आज दवाइयां महंगी हैं, बिजली और गैस के बिल महंगे हैं, और परसों बेशर्मी से कहा कि महंगाई में कमी वाकई हुई है, साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अवाम को बेवकूफ मत समझिए, अनकरीब वक्त आने वाला है कि आपके MLA, MPA, आपकी सियासी जमात के अरकान गली बाजों में निकलेंगे, ये इस काबिल नहीं होंगे कि वहां से ये निकल सके या महफूज तरीके से वहां से गुजर सके। अवाम की आंखों में गम गुस्सा है, आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा और आपके हिसाब के दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह NRO नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, वज़ीर आज़म मुस्ताफी नहीं हुए, तो अब PDM का क्या लायामल होगा? क्या कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे जैसा कि पार्टी कहती रही है, जाके कोई और देखिए, जिस तरह 31 जनवरी की डेट गुजरी है, जो करप्शन है, चोरी है, उसमें और तेजी आ गई है क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत मुख्तसर दिन रह गए इनके, इसलिए जितना लूट सकते हैं लूट लें। और 4 फरवरी को तमाम जमातें जो PDM की हैं वो इस्लामाबाद में बैठेंगी और उसके ऊपर जो लाएअमल है हमारा वो डिस्कस भी होगा और पाकिस्तान की आवाम को बताया भी जाएगा और ऐलान इजलास के हवाले से अपनी पार्टी से भी चीज़ें आ रही हैं, के हवाले से मौलाना साहब जो है वो नाराज है, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की चॉइसेस हैं उनको एक्सरसाइज करने के हवाले से बने, उसमें क्या? देखिए, इख्तलाफात की तो जो झूठ है और जो गुफ्तगू है वो तो PDM बनने से पहले फिर PDM बन गई। ये PDM बनने के बाद जो आवाम का रद्द-ए-अमल आया, उसके ऊपर जो कराए के तर्जुमान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म समेत सुबह दोपहर शाम PDM, तो वो आपको पता चल गया है क्योंकि जो PDM है वो आवाम के हक़ूक़ की जो जंग है उसकी तहरीक है, ये आवाम को पता चल चुका है और आवाम PDM के साथ है, कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जमातें इस इत्तेहाद में एक है और पूरी तरजीह है वो इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कमीशन खोरों, कब्जा ग्रुप को घर बेचने की। एक तलबा के बारे से बात करता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में जो तलबा का इस्तेमाल हो रहा है, लाहौर में जो आपने देखा तलबा के साथ जो सलूक किया गया, मुस्लिम लीग ये समझती है कि तलबा के साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की हाई हैंडेडनेस है। हम तलबा के साथ खड़े हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान के तलबा यहाँ पे आके एहतजाज कर रहे हैं उसमें बाकायदा शरीक भी होंगे और तलबा की जितनी ये इस्तेसाल है इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और जो गिलगित बल्तिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें कम की गई हैं उसके खिलाफ भी बात। अच्छा कहा जा सकता है मुझे इस बात की निशानदेही की है कि जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की तकरीर की और आर्मी चीफ के रोल के बारे में बात की तो उनको गद्दार कहा गया और एक कैंपेन चलाई गई और गुज़श्ता
दूसरा, चंद दिन कबल एक हुकूमती एंकर की तरफ से आर्मी चीफ की फैमिली के बारे में इल्जाम आयद किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो हुकूमत के कहने पर किए गए। तो हुकूमत के बारे में इस चीज़ की इंक्वायरी करने का PMLN मुतालबा करेगी? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर ये जो रवायत है और सियासतदानों के ऊपर जो रवायत है कि जो मुहिब्बुल वतन हो, आवाम की खिदमत करे, आवाम का ये जो मैंने अभी आपको तमाम मंसूबे गिनवाए जो आवाम को रिलीफ दे और जो वोट को इज्जत दो और आइन की बालादस्ती की बात करे, उसके ऊपर गद्दारी का जो फतवा है वो हम देख रहे हैं फातिमा जिन्ना से शुरू हुआ और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। यही इस मुल्क की बदकिस्मती है और यही इसी वजह से इसकी जो सज़ा है ये पाकिस्तान की आवाम, ये जो कब्ज़ा माफिया और आटा चीनी चोर हैं, इनकी शक्ल में भुगतती है। ये शक्लें बदलती रहती हैं लेकिन जो तरीक़ा कार है वो एक ही रहता है। पीछे से वारदातें डलती हैं, कभी RTS को बैठाया जाता है। तो ये पाकिस्तान की आवाम जानती है कि गद्दारी में आ रही नए इल्जामात के पीछे जो गद्दारी है वो कि कौन गद्दार हैं। गद्दार वो होते हैं जो सकूत कश्मीर करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो आवाम का चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई जो ब्रॉडशीट के अंदर कमीशन खाते पकड़े जाते हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना इस किस्म की बातों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो उन्होंने बात की वो आज तक उस बात के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम को एक सोच दी है कि वो ये समझ सकें कि जब आवाम का मैंडेट चोरी होता है, वोट चोरी होता है, तो उसकी जो खमियाजा है और उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम को। मैडम ये बताइएगा, अभी सवाल कि PDM जो है वो 4 तारीख को फिर एक तारीख दे दी गई है। पहले इस्तीफों से, सेनेट से पहले इस्तीफों की बात हुई, आप उससे पोजीशन पीछे हट गई। लॉन्ग मार्च की डेट आज तक नहीं दे सके, कारकुन आपका मौजूद है। इतनी बैड गवर्नेंस जो आपने जितनी करवाई है ये बिल्कुल ठीक है और ये हुकूमत की मौजूद है, आवाम भी देख रही है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुई अपोजिशन? इतनी नाअहली, नाकामी के बावजूद आप कामयाब क्यों नहीं हो? देखिए, पहली बात तो ये आपने अपना एनालिसिस दिया, सवाल नहीं किया। आपके एनालिसिस को तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, वो आपका ज़ाती एनालिसिस है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर करूंगी कि अगर PDM कामयाब ना होती तो ये ओपन बैलेट सेनेट की जो एक नई वो है वो ना लगती। ये इनके अपने एलाइज, इनके अपने मेम्बरान, जैसे भी अता ने बात की कि ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। जो आवाम इस वक्त इनकी चोरी, इनकी नालायकी, इनकी नाअहली और करप्शन की वजह से परेशान है वो अपने हलकों में नहीं जा सकते क्योंकि आवाम ने चोरों को पकड़ लिया है। और दूसरी बात आपने ये की कि अगर PDM कामयाब ना होती और PDM आज जिस जगह पर खड़ी हुई है वो बड़ी क्रिटिकल जंक्चर है क्योंकि इनकी चीखें निकल रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें और हर रोज़ एक नया स्कैंडल आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि चोरी में तेज़ी आ गई है, ये सिर्फ PDM की जो इफेक्टिवनेस है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और कोई तारीख पे तारीख नहीं दी। ये जो आपने एक और एनालिसिस किया, 20 सितंबर का जो आपको याद होगा रेजोल्यूशन APC का, उसके बाद हमने कहा कि बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे और इन नालायकों, नाअहलों और चोरों और कब्जा माफिया को घर भेजेंगे। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है और 31 जनवरी की डेट हमने खुद दी थी कि ये बेशरम लोग इस्तीफे दें और घर जाएं, लेकिन इनमें शर्म है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है। अगर एक खुदकशी हो जाती तो आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है वो बहुत ही उसमें होते तो रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को असल जो तर्जुमान है पाकिस्तान की आवाम के वो मायूस होने अच्छा मैडम, ये बताइए कि मैडम 4 तारीख को PDM अपना आइंदा लायबल का हवाले से ऐलान करें, लेकिन आप ही समझते हैं कि जिस एहतजाज किए जाते थे, अब पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन उस तरह मुस्लिम लीग बहुत बड़ी जमात अपोजिशन की वो उस तरह एहतजाज नहीं कर रही। खसूसन लाहौर के हवाले से अगर बात करें, 1 महीना कूड़ा पड़ा रहा, किसी MNA MPA को इतना नहीं हुआ कि वो वहाँ पर जाकर एहतजाज करता या काफी हुकूमत और इस हुकूमत का हवा। देखिए, PDM जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है PDM में जो अपना हिस्सा डाल रही है और तमाम जमातें फॉर दैट मैटर, वो यही एहतजाज है। इन कीमतों में इजाफा हो, चोरी और मैं आपको कौन बात बताऊँ, ये खाली कीमतों में इजाफा जो है ना इसको अलहदा नहीं देखा जा सकता। जब तक ये चोरी, ये करप्शन, ये कब्जा माफिया मुल्क पर काबिज रहेगा, हर रोज कीमत बढ़ेगी। हर रोज जिस तरह ये मुल्क को, कौमी खजाने को लूट रहे हैं, उसमें से कमीशन खा रहे हैं, उसमें से अपने ATM चला रहे हैं, उसमें से अपने बावर्ची खाने का खर्चा चला रहे हैं, ये हर रोज बिजली की कीमत बढ़ेगी, हर रोज गैस की कीमत बढ़ेगी, हर रोज आटे, चीनी, दवाई, हर रोज महंगाई होगी। और क्या कहेंगे
ये महंगाई तो नहीं हुई? तो इसलिए ये आप अलग-अलग नहीं देख सकते, ये सब इनकी नालायकी और चोरी और करप्शन के साथ। टेलीफोन कॉल्स भी वसूल की थी, उस पर एक कमेंट करें। अगर हिम्मत है तो जुमेरात को आना था पार्लियामेंट में। आज 2.5 साल हो गए ना रूल्स में तब्दीली, लेकिन क्या मुंह लेकर आटा चीनी चोर, बिजली गैस दवाई चोर, जो सहूलतकार है माफिया का, वो क्या मुंह लेकर पार्लियामेंट में आएगा? तो ये एक नया स्टैंड शुरू। और हिम्मत होती है ये कॉल लाइव चलाते हैं, लाइव